Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 11, light, sound and force. So in this chapter we shall learn about the light. What are the luminous objects and non-luminous objects? And we should know about the luminous objects that can emit light and the non-luminous objects that cannot emit light, and how can we see objects in light and we cannot see the objects in dark. We also know how the sound travels in a medium, that is air. We also know about the force, that is push or pull activity. All these topics we will discuss in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 11, light, sound and force. So get start. Write L for the objects which emit light, P for sounds which are pleasant, and U for the ones which are unpleasant. Now students, you can identify the different objects that is emit light. You write L here. The objects which sounds are pleasant, you can write P here, and the objects which are unpleasant sound, you can write U here. Now students, let's start. First is the electric bulb. Electric bulb is an object which emits light, so we can write L here. Next is dog barking. Dog barking is an unpleasant sound, so write U here. Next is birds chirping. Birds chirping is pleasant, so write P here. Next is car honking. बच्चों जो कार की honking होती है वो unpleasant होती है, so write U here. Next is music. Music is pleasant, write P here. And last one is electric torch. Torch क्या करती है? Emit करती है light, so write L here. Now students, let's read the chapter. When you enter a dark room, can you see anything? No, you cannot see in the dark. What happens when you switch on a bulb? You can see everything. You need light to see things around you. We can play and work in the light. बच्चों, जब भी आप डार्क रूम में एंटर करते हो, क्या आपको कोई चीज दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वहां पे अंधेरा होता है, वहां पे लाइट्स नहीं होती। जैसे आप बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो आपको सारी ही चीजें दिखाई देने लगती हैं। आपको कोई भी चीज को देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है। आप लाइट में ही काम कर पाते हैं और खेल पाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. The sun is the main source of natural light. It provides light, heat and energy to the earth. बच्चों, सन जो है हमारा मेन सोर्स होता है नेचुरल लाइट का। बच्चों, सन से ही हमें हीट, गर्मी मिलती है, वार्मथ मिलती है, लाइट मिलती है और एनर्जी मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन डिवाइड ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. The sun, candles, street lights, torches, bulbs, stars, tube lights are examples of luminous objects. बच्चों, जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को एमिट करते हैं, जिनमें से लाइट निकलती है, उन्हें हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जस्ट लाइक सन, इलेक्ट्रिक टॉर्च, स्टार्स एंड ट्यूब लाइट. बच्चों, ये सारे आपके लाइट एमिट करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. The moon, furniture, books, clothes are examples of non-luminous objects. बच्चों, जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट नहीं करते वो हमारे non-luminous objects होते हैं, just like moon. अब आप कहेंगे कि मून तो चमकता हुआ नजर आता है रात में, उसकी रोशनी होती है। मून की बच्चों खुद की रोशनी नहीं होती, वो किसकी वजह से रिफ्लेक्ट करता है? सन की रोशनी की वजह से आपको चमकता हुआ नजर आता है। इसलिए हमने मून को नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा है. टेबल, चेयर, नेक्स्ट इज बुक्स एंड लास्ट वन इज क्लोथ. ये सारे लाइट्स एमिट नहीं करते, इसलिए नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. We can see non-luminous objects only when light falls on them. When light hits an object, some part of it bounces back and reaches our eyes. It enables the object visible to us. बच्चों, जो सारे non-luminous objects हैं, अगर कोई भी लाइट सोर्स उनके ऊपर टकराती है, कोई भी लाइट रे उनसे बाउंस बैक होके हमारी आईज तक रीच करती है, उसी की वजह से आप नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज शेडो. When an object blocks the path of light, a shadow of that object is formed. A shadow is a dark patch and is formed in the direction opposite to the source of light. आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट का
पाथ ब्लॉक कर देता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अगर उसके रास्ते के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्म होने लग जाती है, जिसे हम परछाई कहते हैं। शेडो एक डार्क पैच होता है बच्चों, जो हमेशा हमारे लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होती है। द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो। शेडो को फॉर्म करने के लिए फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट का होना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है जो लाइट को पाथ को ब्लॉक करे। प्रेजेंस ऑफ अ सरफेस, और एक ऐसा सरफेस जहां पे शेडो फॉर्म होगी। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज, अ गर्ल्स शेडो। नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन, नेम अ थिंग दैट डज नॉट कास्ट अ शेडो। आप मुझे एक ऐसी चीज बताइए कि जो शेडो कास्ट नहीं कर सकती, यानी कि जिसकी परछाई नहीं बन सकती। बच्चों, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की परछाई नहीं बनती, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट पास होकर निकल जाती है। नाउ नेक्स्ट इज, our shadows are formed when we block the light from the sun, bulb, candle, etc. Sometimes they are smaller and sometimes they are bigger than our actual size. बच्चों, शेडोज जो होती हैं लाइट के ब्लॉक होने की वजह से फॉर्म्ड होती हैं। बच्चों, वो लाइट कहीं से भी आ सकती है, सन की रोशनी भी हो सकती है, वो बल्ब की लाइट भी हो सकती है, कैंडल की लाइट भी हो सकती है। शेडो बच्चों जरूरी नहीं है कि जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की शेडो फॉर्म हो। शेडो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि जो रोशनी है वो कहाँ से आ रही है। लॉन्ग शेडोज इन द मॉर्निंग, बच्चों हमारी लॉन्ग शेडो बनती है मॉर्निंग में, क्योंकि जो सन है वो स्लैंटिंग डायरेक्शन में होता है। शॉर्ट शेडो एट नून, बच्चों हमारी दोपहर के समय शॉर्ट शेडो बनती है, क्योंकि हमारा जो सन है वो ओवरहेड होता है, मतलब हमारे सर के ऊपर होता है, इसलिए शॉर्टेस्ट शेडो बनती है। लॉन्ग शेडो इन द इवनिंग, बच्चों लॉन्ग शेडो हमारा फिर दोपहर शाम के समय बनती है, इसलिए बनती है क्योंकि हमारा सन जो है सेट होने वाला होता है, वो स्लैंटिंग डायरेक्शन में होता है। Next is solar eclipse and lunar eclipse. A solar eclipse occurs when the moon blocks the light of the sun. The shadow of the moon falls on the earth and the sun cannot be seen or is partially hidden. Solar eclipse क्या होता है? जब हमारा मून जो है सन के रेस को ब्लॉक कर देता है और उसे हमारे अर्थ प्लैनेट तक नहीं पहुंचने देता, उसे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। बच्चों, जब हमारा सन अर्थ से दिखाई नहीं देता या पार्शियली दिखाई देता है, उसे हम सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। नेक्स्ट, अ लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ blocks the light of the sun. The shadow of the earth falls on the moon and the moon cannot be seen. Lunar eclipse जब होता है जब हमारा अर्थ जो है सन की रेस को ब्लॉक कर देता है और जो हमारे अर्थ की शेडो है वो मून के ऊपर बनती है और मून जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता, जिसे हम चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज। सोलर एक्लिप्स, इसमें क्या हुआ बच्चों, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, जिसकी वजह से सन की जो रेस थी वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाई या पार्शियली पहुंच पाई, जिसकी वजह से फुल शेडो या पार्शियल शेडो बनती है। नाउ नेक्स्ट इज ल्यूनर एक्लिप्स, जब हमारे सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है उसे हम ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं, जिसकी वजह से फुल शेडो या पार्शियल शेडो बनती है। नाउ नेक्स्ट, लेट्स सी फन एक्टिविटी। Now students, you required some materials to perform this activity: a torch, a book, a clear glass tumbler and a tracing paper. Now you can follow the procedure. Hold the book, clear glass tumbler and the tracing paper in front of the wall one by one. Ask a friend to shine the torch on each object. आपको क्या करना है, एक बार बुक लेके जाएंगे, एक बार क्लियर ग्लास टम्बलर लेके जाएंगे, एक बार ट्रेसिंग पेपर लेके जाएंगे वॉल के पास वन बाय वन, और अपने एक फ्रेंड से कहेंगे कि वो टॉर्च की जो रेज है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एमिट करे। नाउ लेट्स सी, व्हाट डू यू फाइंड? द बुक कास्ट अ डार्क शेडो। आपको ये नजर आएगा कि बुक की सबसे ज्यादा डार्क शेडो बनेगी। द क्लियर ग्लास टम्बलर डज नॉट कास्ट अ शेडो। और जो ग्लास टम्बलर है, जो आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसकी शेडो नहीं फॉर्म होगी। द ट्रेसिंग पेपर कास्ट अ वेरी फेंट शेडो। और जो ट्रेसिंग पेपर है उसकी धुंधली शेडो बनेगी, फेंट शेडो बनेगी। नाउ you can conclude that the book casts a dark shadow because it completely blocked this light. The clear glass tumbler does not cast a shadow because it does not block the light. The tracing paper casts a very faint shadow because it blocks the light partially. बच्चों, हमने ये समझा इस एक्टिविटी से कि जो हमारा बुक है
वो क्या है, हमारा लाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा है, इसलिए उसकी शेडो सबसे ज्यादा डार्क बनी है। हमारा ग्लास टम्बलर जो लाइट को ब्लॉक नहीं कर पा रहा, इसलिए इसकी बिल्कुल भी शेडो फॉर्म नहीं हुई है। हमारा ट्रांसलूसेंट पेपर यानी जिसे हम ट्रेसिंग पेपर भी कहते हैं, वो कैसा कर रहा है, पार्शियली शेडो फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो पार्शियल ही लाइट को पास कर पा रहा है। इस तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट जितनी अच्छे लाइट को ब्लॉक करता है, उसकी शेडो उतनी ही अच्छी फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट इज साउंड। We hear different types of sounds: chirping of birds, ringing of bells, honking of vehicles, and voices of your friends. All examples of sound. Sound is a form of energy that can be heard by ears. अब sound क्या होती है? आपको अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। बर्ड्स की चिरपिंग, चिड़ियों की चहचहाहट, बेल्स का रिंग होना, व्हीकल्स का हॉन्क करना, अपने फ्रेंड्स की वॉइस, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं साउंड के। बच्चों, साउंड एक तरीके की एनर्जी होती है जो हमारे ईयर्स तक पहुंच पाती है और हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट। Sound travels through the air. If you shout on the moon, nobody can hear you because there is no air on the moon. बच्चों, आपको पता है, जहाँ पे हवा होती है वहीं पे हमें आवाजें सुनाई देती हैं। जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होगी, जस्ट लाइक ऑन द मून, चांद के ऊपर हमें किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि मून के ऊपर एयर प्रेजेंट नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ साउंड। प्लेजेंट साउंड. Some sounds like chirping of birds and the playing of a flute are soft, soothing and enjoyable. Such sounds are called pleasant sound. कुछ साउंड्स बच्चों, जैसे बर्ड की चिरपिंग होती है, चिड़ियों की चहचहाहट हो गई, या फ्लूट्स का प्ले करना, ये सारी साउंड आपको अच्छी लगती है, जो सूथिंग होती है, सॉफ्ट होती है, आप उसे एंजॉय करते हो। उन सारे साउंड्स को हम प्लीजेंट साउंड्स कहते हैं। सेकेंड इज अनप्लीजेंट साउंड्स. Sounds like the horn of vehicles and loud music are harsh and make us uncomfortable. Such sounds are called unpleasant sounds or noise. बच्चों, कुछ साउंड्स जैसे व्हीकल्स का हॉर्न करना, लाउड म्यूजिक का प्ले करना, ये हार्श होती हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपको अनकंफर्टेबल कर देती हैं, जिनसे आपका हेडेक हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉइज यानी शोर या अनप्लीजेंट साउंड। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज फोर्स. A pull or push upon an object is called force. We cannot see force, but we can see what force can do. अगर हम किसी भी चीज को पुल करते हैं या पुश करते हैं, धक्का देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं। बच्चों, फोर्स को हम देख नहीं सकते। फोर्स को हम सिर्फ कब देखते हैं, जब फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या रुक जाता है। नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है। फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फोर्स से किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जा सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज किया जा सकता है। नाउ, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर. इट कैन ऑल्सो मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन. फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को तेजी से मूव करवाया जा सकता है या किसी भी तेज ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। When two things touch each other, friction develops. अगर कोई भी दो चीजें आपस में टच करती हैं तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ स्पेशल फोर्स दैट शोज मूवमेंट. फ्रिक्शन एक स्पेशल फोर्स होती है जिससे हमें मूवमेंट का पता चलता है। So, when you push or pull an object to move it, the force of the push or pull should be greater than the force of friction. बच्चों, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए उसे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो जो आपका पुश या पुल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, वो बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है? उस ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखती है, मूव नहीं करवाती। अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हमें फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। When friction is very low, things slide. When it is high, things do not move. But if there were no friction, we will not be able to walk. We will keep slipping off. आपको पता है फ्रिक्शन के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं? फ्रिक्शन अगर कम है यानी थिंग्स जो है स्लाइड करेंगी, फिसलेंगी, मतलब हम रुक नहीं पा रहे। फ्रिक्शन क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने का काम करती है।
अगर फ्रिक्शन ज्यादा है मतलब स्टॉपिंग पावर ज्यादा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। अगर बच्चों फ्रिक्शन है ही नहीं, कहीं किसी भी प्लेस पे आप देखते हैं फ्रिक्शन नहीं, तो आप उसमें फिसलते हुए चले जाएंगे, स्लाइड ऑफ हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन जो है आपको मूव करने में, वॉक करने में भी हेल्प करती है। नाउ स्टूडेंट्स बिकम पहचान। Look around your classroom carefully and make two different lists of things that you can push or pull. Now students, you can observe in your classroom and make two different lists of things. First column things I can push, जो things आप push करते हैं, जो आप धक्का देते हैं जिन चीजों को, things I can pull, जो चीजें आप अपनी तरफ खींचते हैं। आप any 5 examples you can fill it here in the column. Now students, let's see new words. First word is shadow. A dark shade on a surface that is caused by something being between light and the surface. शेडो यानी परछाई, जो डार्क शेड होता है किसी भी सरफेस पे बनाया जाता है लाइट और लाइट सोर्स के बीच में, उसे हम शेडो यानी परछाई कहते हैं। नॉइस मीन्स अनप्लीजेंट साउंड, जो साउंड आपको अच्छी नहीं लगती, जो अनप्लीजेंट लगती है, उसे हम नॉइज यानी शोर कहते हैं। फोर्स मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, फोर्स यानी फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी हमारे मसल्स में कितनी पावर है कि हम किसी भी चीज को पुश या पुल करवा रहे हैं। फ्रिक्शन मीन्स द रबिंग ऑफ वन सरफेस अगेंस्ट अनदर, एक सरफेस का दूसरे सरफेस के ऊपर रब होना या मूव करना, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स बच्चों लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। Books, cloth, furniture, etc. are examples of non-luminous object. बच्चों कुछ हमारे non-luminous objects होते हैं जो light emit नहीं करते, just like book, cloth और furniture. Sound is a form of energy that can be heard by ears. Sound बच्चों एक फॉर्म की एनर्जी होती है जो हमारे ईयर्स तक पहुंचती है और हम उस साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। There are two types of sounds, pleasant sounds and unpleasant sounds. बच्चों दो तरीके की साउंड्स होती हैं, एक प्लीजेंट जो आपको अच्छी लगती है, कंफर्टेबल लगती है, और नेक्स्ट इज अनप्लीजेंट जो हार्श होती है। आप पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बच्चों अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं उसे हम फोर्स कहेंगे। When two things touch each other, friction develops. बच्चों अगर कोई भी दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उसमें फ्रिक्शन डेवलप होता है। Now students, it's exercise time. Let's do exercise A. Take write the correct option. Now you can choose the right one. First, it is the main source of light on earth. बच्चों अर्थ पे लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन, सूरज। B is the right answer. Sound is a form of energy. B is the right answer. A push or pull is called a force. A is the right answer. A dark shape of an object formed when it blocked the passage of light. So C is the right answer. Unpleasant sound are called as, unpleasant sounds को हम क्या कहते हैं बच्चों? Noise. C is the right answer. Next, we do exercise B, fill in the blanks. First is the object that give us light are called luminous object. Next, we can see dash objects only when light falls on them. We can see non-luminous objects. The objects that do not give out light are called dash objects, non-luminous objects. Now, next is dash is a form of energy that can be heard by ears, sound. A dash or dash upon an object is called force, a push or pull. Now let's do exercise C. Write T for true and F for false statement. First is, we can see objects even in complete darkness. No, it is false. We need light to see objects. A shadow is always formed on the opposite side to the source of light. Yes, it is true. Sweet voice of someone and soft music are pleasant sound. Yes, it is true. We can see force but cannot see what force can do. No, it is false. Force can make an object move faster or slower. Yes, it is true. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.